Canada's pissed at America. Why is Canada pissed, man? Actually, I know why Canada's pissed. Because Trump is treating them like China and imposing tariffs. सो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है यूएसए और कनाडा के बीच में। ना सिर्फ यूएस, कनाडा, मैक्सिको, चाइना भी यहाँ पर कूद चुके हैं। जो दृश्य आज के समय हम देख रहे हैं, उम्मीद थी नहीं कभी ये देखने को मिलेगा कि कनाडा के लोग ये बात करेंगे कि ओपनली बॉयकॉट करो यूएसए को। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप अभी तक मैं कहूँगा अपने वचन के पक्के हैं। जो इन्होंने बात कही थी वो करी। कनाडा, मैक्सिको, चाइना। Canada's always pissed, but they're the 51st state. Yeah, they're just a little brother at the table. They got embarrassed, and now they're just at the dinner table. And just once they tire themselves out, they'll realize they'll come home to Papa. तीनों पे लगा दिए हैं सैंक्शंस। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जस्टिन ट्रूडो की, What's up, जहां पर ये archivist? कनेडियन नेशनल्स को कह रहे हैं कि देखिए यूएसए को हम जवाब देंगे, हम यूएसए का बॉयकॉट कर देंगे, अमेरिकन चीजें परचेज नहीं करेंगे, अमेरिकन जूस भी मत पियो। मतलब हर तरफ से आप कह लीजिए कनेडियंस इकट्ठा हो रहे हैं और यूएसए से एक ट्रेड वॉर, लंबी ट्रेड वॉर लड़ने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ट्रम्प की अनाउंसमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं इन्होंने 25% टैरिफ लगा दिए हैं। मतलब कि कल को कनाडा से कोई भी सामान ये यूएसए में बेचने की कोशिश करेंगे, मान लो उसका दाम हुआ करता था $100, अब $125 का बिकेगा। बेसिकली अमेरिकन, कनेडियन सामान, मैक्सिकन काफ़ी सारी आइटम्स और इवन Canada cannot exist without the support of the U.S. It's simply not possible. I'm trying to sit here and think. I'm like, what really comes from Canada? Same thing with Mexico. What really comes from Mexico, where they feel like if it costs more for them to send shit here, I बहुत just सारी चाइनीज आइटम्स कम परचेज करेंगे क्योंकि ये महंगी हो जाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए कनेडियन एनर्जी को भी नहीं बख्शा, उस सेक्टर पे भी लगा दिए हैं 10% टैरिफ और 10% no, I एडिशनल didn't, टैरिफ लगा archivist. दिए हैं चाइना पर। रीजन इन्होंने ये बताया है कि Actually, I इन think सब you told me कंट्रीज से that. We need to लगातार watch a video on it. फेंटनल ये भेजा जा रहा था यूएसए में, जिसकी वजह से यूएसए की एक बड़ी आबादी इससे एडिक्टेड हो गई थी और कई लोग यूएसए में मारे गए। इसके जवाब में देखो जस्टिन ट्रूडो की ये जो वीडियो है ना, ये वायरल। I thought he already resigned. How is this guy still relevant? I thought he was already stepped down. The people hate him. The government doesn't respect him. No other foreign entity respects him. How is this guy still leading this country? हो चुकी है। And now is also the time to choose Canada. There are Why? many ways for you to do your part. It might mean checking the labels at the supermarket and picking Canadian-made products. It might mean opting for Canadian rye over Kentucky bourbon, or foregoing Florida orange juice altogether. Bro, you're telling me you want to ban orange juice? This guy wants the Canadians to stop drinking orange juice? Oh, no, they're pissed. It might mean changing your summer vacation plans to stay here in Canada and explore the many national and provincial parks, Even the guy was like, hold on. The guy in the background was like, wait, hold on. I can't do that. I got a trip planned to fucking California. Look at this guy. Look here in the corner when he's like, you might have to stay here in Canada. explore the many national and provincial parks. He's like, shit, I already got a historical planned trip. sites, and tourist Fuck. destinations our great country has to offer. नाउ यहाँ पर गवर्नर ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, जो अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, मार्च महीने में ये मोस्ट प्रॉब्ली हट जाएंगे। अभी के लिए सिंस एक्टिंग पीएम है, तो जो भी ट्रंप ने किया है कनाडा के साथ, इसके जवाब में कनाडा ने भी जो 25% टैरिफ लगा दिए हैं $150 बिलियन वर्थ गुड्स पर। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि अमेरिकन को definitely should जवाब not देने have का that समय beard आ चुका है, mustache. टाइम टू चूज। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कनेडियन से। ये कह रहे हैं कि कल को अगर मार्केट में जाओ तो आपको अगर ऑप्शन दिखता है मार्केट में कि आपको कोई मेड इन कनाडा आइटम दिखती है, मेड इन अमेरिका आइटम दिखती है, I mean, in all honesty, there should be a little bit of pride that you do live in your own country. Like, I don't disagree with him on that. Like, if you can go out of your way and buy something that's made in India and you live in India, or you're in America and you can buy something and you probably want to keep the money in house. Like, that just makes sense. मेड इन कनाडा आइटम परचेज करो। ये कह रहे हैं यहाँ पे सुपरमार्केट में जा करना, चेक He द called him Governor लेबल्स, Trudeau by mistake. लेबल Oh, no, that was not a mistake. चेक करो। That was foreshadowing. और यहाँ पे आप देख पाओगे कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं पिकिंग कनेडियन मेड प्रोडक्ट्स। एक छोटी सी यहाँ पे बात बोलूँगा, इंडिया चाइना की बहुत टेंशन हुई थी, गलवान वैली का इंसिडेंट आ गया था। उस वक्त मुझे याद है जो भी ये बात बोलता था ना कि मेड इन चाइना आइटम मत परचेज करो, कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, मेजॉरिटी की मैं बात नहीं करूँगा, कुछ छोटी सी आबादी होती है
वो लोग बोलते रहे कि अरे ये तो ज़्यादा ही देशभक्त बन रहा है, ये तो ज़्यादा ही दीवाना हो गया है, ज़्यादा ही पेट्रियोटिज्म दिखा रहा है, चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट हम क्यों ना परचेज़ करें? ठीक है, चाइना ने कुछ किया होगा, हमें जो I परचेज़ guess that's literally the same thing, right? You just guys focus on buying Indian-made products, but China's so crazy because China makes everything. करना हम परचेज़ कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा को इनके प्राइम मिनिस्टर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कनेडियन इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कनेडियन एक्सपोर्ट्स यूएसए को बहुत बड़े स्केल पर किए जाते हैं। ये एक्सपोर्ट्स जब नहीं पहुंचेंगे यूएसए में, कनाडा में क्या होगा? नौकरियां जाएंगी तो इकोनॉमी स्ट्रगल करेगी, लोग अपने लोन पे नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि इनके एक दो बैंक्स ये डगमगा जाएं। इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा ना कनाडा पे, इतना बड़ा होगा। तभी इनके प्राइम मिनिस्टर खड़े हो गए हैं, अपने देश के नागरिकों को कह रहे हैं कि मेड इन कनाडा प्रोडक्ट परचेज करो। और मैं देख रहा था No, Geeky, कनेडियन it probably सोशल was a मीडिया mistake. We're just प्लेटफॉर्म्स trolling. पर We're just being कनेडियन trolls. लोग ना बिल्कुल एक हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, हम अपने देश का जो स्वाभिमान है ये नहीं खोएंगे। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि मतलब कनाडा का झंडा त्याग दो और कनाडा एज ए कंट्री इसका आइडिया त्याग दो, यूएसए में मर्ज हो जाओ, नहीं मर्ज होगे तो तुम पे टैरिफ लगा दूंगा। ये सब बातें देखकर कनाडा में आज के समय एक देश प्रेम जाग चुका है। और यही मैं कहूंगा, डेवलप्ड कंट्रीज में एक चीज होती है जो हम लोग प्रॉपरली सीख नहीं पाते। हम लोग वेस्ट से Trudeau, the और बहुत ultimate कुछ सीखते femboy, हैं, इनके गाने, he's definitely मूवीज और soft. दुनिया भर की और चीजें। मगर एक बात नोट करना, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमेरिकन सोल्जर ने कनेडियन सोल्जर को मारा हो। अभी स्थिति वैसी नहीं पहुंची है। अभी तो बस इकोनॉमी की बात आ रही है। खुल के कनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अपने कनेडियन सिटीजन्स को कि ऑप्ट फॉर मेड इन कनाडा आइटम्स। ठीक है, कुछ आपको परचेज करना है तो फ्लोरिडा से बना हुआ ऑरेंज जूस Besides maple syrup and turkey bacon, what is made in Canada? मत लो, मेड इन कनाडा कुछ अगर आइटम दिखती है वो परचेज करो। यहां तक कह दिया, छुट्टी मनाने के लिए भी जाना है ना Lumber? अगर, तो यूएसए Lumber, मत जाओ। maybe? खुद का देश है कनाडा, बहुत सुंदर देश है, उसको एक्सप्लोर करो। क्योंकि तुम छुट्टियां मनाने के लिए भी वहां पे जाओगे, उनकी इकोनॉमी में पैसा जाएगा। I would like to go to Toronto. There is a few places in Canada I would like to travel. And if it becomes the 51st state, way easier. यहाँ पे मैं कहूंगा इसलिए कनाडा डेवलप्ड है। कहीं ना कहीं आपको अपने देश से प्यार करना होता है, और वो प्यार हर What do जगह you mean दिखता by है। Canada pulses? लोगों में It सिविक has सेंस nickel है, and लोग other कचरा precious नहीं फैला रहे minerals? सड़कों पर, लोग मान के चल रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो इस पर मेरा भी एक हक है। I ये didn't know that. मेरे देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसका मैं नुकसान नहीं करूंगा। और जब देश पर एक इकोनॉमिक संकट आ जाए, पूरा देश इकट्ठा होकर प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखो, जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के अगेंस्ट खूब अनाप शनाप काम किए होंगे, और काफी हद तक एक चीज होती है, हम लोग इंडिया में तो मानते हैं कर्म, कि जैसे आपके कर्म होते हैं वैसा फल मिलता है। Damn. फल इनको यहाँ पे ठीक ठाक मिल रहा है। Almost pulling out karma against Trudeau. He's like, dude, this guy's racked up a debt. Karma is coming for him. काफी जल्दी मिल रहा है, टाइमली डिलीवरी हुई है। मगर इस सब के बाद पूरे कनेडियन पॉलिटिक्स में आप देख लो, एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कनाडा में वो जो ये कह रही हो कि गवर्नर ट्रूडो ये क्या कर दिया, हमें कहाँ फंसा दिया आपने, अब हम क्या करेंगे। कनाडा का जो ऑपोजिशन है, इवन दो कनाडा में इलेक्शन पास आ रहे हैं, तब भी कनाडा का जो ऑपोजिशन है, जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सब लोग आज के समय जस्टिन ट्रूडो के पीछे खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि यूएसए को मिलके I don't. What? जवाब देंगे। I don't think it. I don't think the like speaking Scotty. Scotty is our Canadian brethren over here in this community, and I think in his words he called Trudeau a fucking idiot. So I don't think there's too many. I mean, I'm sure there's some Canadians that support him, just like there were some idiots that supported Kamala Harris and Joe Biden, but I don't think the majority do. और अभी भी वैसे मैं एक बात यहाँ Of pulses? What do you mean by Canadian exports are a huge amount of pulses? What do you mean by that? पर ये भी ऐड कर दूं कि ट्रेड वॉर इन दोनों देशों के बीच में हो सकता है कि और ज्यादा बढ़े। अभी तो देखो कनाडा ने ना 155 बिलियन डॉलर्स का जो टोटल एक ट्रेड होता है, उसमें इन्होंने 25% के टैरिफ लगा दिए हैं। प्राइमरली आप कह लो जो यूएसए के इंपोर्ट्स हैं टू कनाडा, इस पे लगा दिए हैं 25% के टैरिफ। वैसे कनाडा और यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है, ये दुनिया में It's सबसे a बड़ा national ट्रेड security रिलेशन है। issue. I guess दोनों that's fair. कंट्रीज का ट्रेड 2023 I guess that's fair. Right now, they're just looking towards whoever their leader is, and they're like, America's gonna make it very hard. No, that's fair, archivist. You're right. You're right. अब इसके डेटा के When हिसाब you से write, अगर हम देखें you're तो right. 923 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। यूएसए के एक्सपोर्ट्स कनाडा को हैं 441 बिलियन डॉलर्स। इसमें से आप ये 155 बिलियन डॉलर जो है इस पे लगा दिए गए हैं Oh, टैरिफ। lentils? और यूएस के जो इंपोर्ट्स थे फ्रॉम कनाडा,
इस पर यूएस ने लगा दिए हैं 25% के टैरिफ। तो अभी तो देखिए शुरुआत है, ये नंबर बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे अगर मान लो इफ इंडिया के साथ कनाडा यूएस दोनों के ट्रेड रिलेशंस नॉर्मल रहते हैं, कुछ टैरिफ का इशू नहीं आता, कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल इंडिया जैसे कई देशों को यह अवसर मिलेगा कि हम लोग सस्ते दामों पर यूएस कनाडा में अपना सामान बेच सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है इन दोनों का जो ये ट्रेड वॉर का इशू है कब खत्म होगा। क्योंकि ट्रंप ने जो आरोप लगाए हैं कनाडा पे बहुत बड़े हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे व्हाइट हाउस की ट्वीट्स है, ओपनली कह रहे हैं कि फेंटेनल एक ड्रग This is होता gonna है, crumble their ये economy? Yeah. ह्यूमंगस स्केल पर Or चाइना China? करता था प्रोड्यूस। और I think उसके both. बाद कनाडा में जो क्राइम ग्रुप्स हैं ये इस फेंटेनल को यूएस में लेके जाते थे और फिर यूएस के लोगों को इससे लग गई लत। अब यहाँ पे देखिए जस्टिन ट्रूडो की भी गलती है, बिल्कुल इन्होंने अपने देश में जिस तरीके से इमिग्रेशन करी है गलत है। कई गलत लोग कनाडा में आ गए थे, उन्होंने ग्रुप्स बना लिए होंगे पैसे के लिए, बिल्कुल अमेरिकन को इन्होंने ह्यूज स्केल पर यहाँ पे फेंटेनल प्रोवाइड करवाया, जिससे कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, कई लोग बुरी तरीके से मारे गए यूएसए में। अब यहाँ पे एक सवाल आप ये पूछोगे कि जो टैरिफ लगा दिए हैं चाइना में, इसका क्या ये जो टैरिफ लगाए गए हैं इसका चाइना जवाब देगा? बिल्कुल चाइना ने बोला है कि हम इसका यहाँ पे आंसर करेंगे। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज सामने हैं। मैं फिर से बोलूंगा, पीएम मोदी फरवरी महीने में ट्रम्प से जो Yep. मिलने जाएंगे ना, उस विजिट को There's gonna be. क्लोजली Well, I फॉलो wonder when they करिएगा। meet in मैं February. I hope it's the क्लोजली फॉलो beginning. करूंगा, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं ये I भी hope it's आप not पे like the लेके end of आऊंगा। February. उस विजिट में काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि ट्रम्प इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर पीएम मोदी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं ट्रम्प के साथ कि देखिए आपके जो भी गिले शिकवा हैं, हार्वी डेविडसन बाइक कुछ भी वगैरह, टेस्ला की एंट्री करवानी है, सब कर देंगे। थोड़ा सा आप इंडिया के साथ फ्रेंडली एक अपना रखिएगा रुख, रिलेशन खराब मत करिएगा। अगर हम ट्रम्प को मना लेते हैं और ट्रम्प शांति से इंडिया के साथ रिलेशंस कंटिन्यू करते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के लिए। क्योंकि कनेडियन गुड्स हो जाएंगे यूएसए में महंगे, अमेरिकन गुड्स हो जाएंगे कनाडा में महंगे। सेम केस होगा यूएस और मेक्सिको के बीच में। हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएसए को। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आर क्वालिटी कि क्या हम यूएस के जो क्वालिटी टेस्ट होते हैं उनके हिसाब से जो आइटम्स है प्रोड्यूस कर सकते हैं, टाइमली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्या हम उठा सकते हैं या नहीं? सो Have I not been calling this though? वाला टाइम देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। It's always about the money. It always goes back to power, money, and control. And I've called this back in November, man. I think Modi and Trump are going to go in, and I think India is about to have a huge growth in their GDP. And I think America and India's partnership over these next few years is going to be a wonderful thing. I think I could be wrong, but I don't think I am. होगा, अपडेट्स आएंगी, बहुत सी अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखिए भारत में एरो इंडिया 2025 इवेंट बहुत ही जल्दी होगा। इस इवेंट में पहली बार, इतिहास में पहली बार SU-57 I'm gonna go France. D. SU-57 is made by France. Am I right or am I wrong? Ultimately, it's gonna be real interesting. I think Trump declared it's February 2nd as of this live stream. So I think Trump has already imposed these tariffs against Canada, or maybe they start on Monday. I don't know. But man, what an interesting time that we're living in, just globally, because it feels like over the past 10 years, something was ramping up, and now that Trump's in the presidency for the second time, it feels globally that things are being shaken up, and I'm going to be really interested to see how they play out. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch, twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today.
We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.